Today we are going to start exercise 6.2, and as we all know that this exercise has 6 questions, question 1 to 6, and in today's session we will complete question number 1, 2 and 3. So let us start with question number 1. So for question number 1, figure is already drawn here. Now we have to find out the value of x and y in this question. Okay, then after we have to show that line AB and line CD are parallel to each other. So first of all we will find out the value of x and y. So let us start. As we all know, you can see here that x and 50, okay, they will make an angle of 180 degree. यानी इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक लीनियर पेयर बन रहा है इनसे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. So we can write here that x plus 50 should be equal to 180 degree. Reason is linear pair. Okay, so let's find out the value of x from here. So then you will find out x. So we will get 180 minus 50, and which is equals to 130 degree. That means x is equal to 130 degree from here. Similarly, if we will find out the value of y from here, so as you all can see, at this point, these two lines are intersecting each other. Okay, and we all know very well that when two lines intersect each other, यानी जब two lines intersect करते हैं तो वहाँ पर बनते हैं vertically opposite angles. तो ऐसे ही ये y और ये 130 जो है, ये है हमारे vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal to each other. यानी वो हमेशा कैसे होते हैं? Equal. That means ये y और ये 130 दोनों angles equal होने चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग y है वो भी कितना हो गया हमारा 130 डिग्री. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो y है वो भी कितना हो गया हमारा 130 डिग्री. So we can write here that y will be equal to 130 degree. Reason is vertically opposite angles. Okay, VOA means vertically opposite angles. So now we know the value of x and y. Both are 10. हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं. अब हमें x की पता है और y की पता है. अब हमें प्रूव करना है, शो करना है कि जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है. तो यहाँ उसके लिए हमें क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये x और y, अगर ये जो हमारे alternate angles हैं, these are the two alternate angles here, and if these two angles are equal, यानी अगर ये x और y अगर equal हो जाते हैं, okay, अगर equal हो जाएंगे तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि हमारे alternate angles हैं, alternate interior angles, they will be equal. और जब किसी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और वहाँ पर अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो लाइंस हमारी हमेशा कैसी होती हैं? पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है और y है वो दोनों ही कितनी है? 130. दैट मीन्स वी कैन राइट हियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल्स टू y, यानी जो x है वो y के इक्वल है. x is also 130. Similarly, y is also 130. Both are 130. That means x is equals to y. Each is 130. यहाँ रीजन लिख देते हैं. Each 130 डिग्री. तो that means x और y इक्वल हो गए हमारे. अब जब x और y इक्वल है यानी ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल्टरनेट angles are equal. Alternate angles are equal, hence AB, यानी जो लाइन AB है पैरेलल होगी CD के. ओके, चाहे तो हम यहाँ भी रीजन ले सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, वो हमने यहाँ पर से लिख ही दिया है, इसकी जरूरत नहीं है. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर. Now next is question number 2, and figure is drawn here. So let's understand the question first of all. It's given here that if AB parallel to CD, that means AB is parallel to CD. यानी ये दो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है. Then CD parallel to EF, and this CD is parallel to EF. Means कि AB parallel है CD के और CD parallel है EF के. That means
these all three lines are parallel to each other. तीनों ही lines एक दूसरे के parallel हैं. Okay, and y ratio z is given to us 3:7. So मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले. This is question number 2. It is given here that AB parallel to CD and CD parallel to EF. This is given to us. Also, this is given that y ratio z is equals to 3:7. 3:7. That means the ratio of y and z is given to us 3:7, and we have to find out the value x. So we have to find out value of x here. Okay. So let us understand. हम सबसे पहले क्या करते हैं, y और z इनको हम सपोज कर लेते हैं. तो लिख देते हैं let y is equals to, यहाँ से हम y सपोज कर लेते हैं 3p लिख देता हूँ मैं 3p, क्योंकि वैसे जनरली हम x सपोज करते हैं, लेकिन x हमें यहाँ पर गिवन है इसलिए हम नहीं करेंगे, और y भी हमारे पास गिवन है, तो उसके बदले हमें कुछ और वेरिएबल सपोज करना होगा. तो मैं यहाँ y is equals to 3p and z is equals to 7p सपोज कर लेता हूँ. यानी जो y रेशियो z हमें गिवन था, दैट आई हैव सपोज y is 3p और z is 7p. ओके, यानी अभी मैं y पता है और z पता है रेशियो की एक वेरिएबल फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अगर देखें कि y, ये जो एंगल है y है, तो यहाँ भी ये किसके इक्वल होगा, ये भी y की इक्वल होगा, बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो यहाँ से हम अगर हम देखें, अगर ये भी हमारा y हो चुका है, अब हम अगर देखें तो ये y और ये z, ये दोनों ही कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. दैट मींस उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो यानी कि y और z इनको ऐड करने पर 180 मिलना चाहिए. तो हम यहाँ हम लिख देते हैं कि y प्लस z. मैं बात कर रहा हूँ इस y की और इस z की, मैं बात इस y की नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये y तो अलग है. इस y से मैंने ये y फाइंड किया, अब ये y और ये z ये मिलकर बना रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है ना. तो यहाँ हम लिख देते हैं y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, तो y प्लस z हो गया हमारा 180 डिग्री. अभी हमने y को यहाँ पर सपोज किया था 3p, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3p और z को लिख देता हूँ मैं 7p. दैट इज इक्वल्स टू 180. नाउ 3p प्लस 7p इट विल बिकम 10p, then 180 and p is equals to 180 upon 10. So 10 one time and 10 18 times. That means value of p is here 80. यानी जो p हमारा आया वो आया 80. यदि हमें p की वैल्यू अगर हमें पता चल चुकी है तो उस p से हम y और z दोनों ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है z निकाल लेंगे, हम केवल y ही निकाल लेते हैं. तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब क्योंकि हमें y पता था, यहाँ पर y जो है हमारा है यहाँ पर 3p, लेकिन हमें p तो पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया है which is 18. So let's put value of p here. So 3 into 18, that means this is equal to 54 डिग्री. यानी जो y है अब हमारा आ चुका है 54 डिग्री. आई होप यू ऑल गुड हैव अंडरस्टूड टिल हियर. यानी हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 54 डिग्री. अब हम अगर y कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, तो अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये भी कितना होगा 54 डिग्री. ठीक है ना. अब हम अगर चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं x की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग बनाकर. ये हमारे पास एक तरीका और भी है कि अगर जैसे हमने y निकाला है ऐसे हम z को निकाल लें. हम z को निकाल लें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इससे आपको 54 पता चल गया. तो 54 y और x ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हैं. या इसके बाद एक सिंपल सा तरीका और ये भी है कि अगर आप y ना निकाल के, जैसे मैं इसको हटाकर y अगर ना निकाल कर z अगर निकालूँ तो z है हमारा 7p. z है हमारा 7p. अभी मैं बताता हूँ कि मैंने z क्यों निकाला. तो 7 into 18 p हमने पुट कर दिया 80. 7 into 18 अगर हम फाइंड करें 7 8 times 56, 5 कैरी एंड 7 1 times 7, 7 plus 5 12. यानी z हमें मिल गया है 126 डिग्री. अब हम अगर देखें तो अगर हम एक मिनट के लिए इस लाइन को भूल जाएं तो सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि AB और जो EF है दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं.
दोनों ही लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई है। तो x और z यानी एंगल x और एंगल z जो है वो है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दैट मींस x विल बी इक्वल टू z। जो एंगल x है वो z के इक्वल होगा, ठीक है ना। और क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन होगा कितना? 126 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर x कैसे कैलकुलेट किया। अगर आप यहाँ से y भी कैलकुलेट करते तो उस y से आपको ऐसे ये y और ये y तो इक्वल है, आप यहाँ से y निकाल लेते और y और x जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो वहाँ से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये आपकी खुद की चॉइस है कैसे आप उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ से z और x को ऑल्टरनेट एंगल्स सपोज करके सपोज करके उनको s से ये रीजन लेकर मैंने उनको फाइंड कर दिया है। x मेरा आ गया है 126 डिग्री। फाइनली लिख देता हूँ मैं x इक्वल्स टू 126 डिग्री। So this was the solution of question number 2. I hope you all would have understood this. Now let's move forward to question number 3. Question number 3, figure is already drawn, so let us understand the figure. So it's given here that if AB is parallel to CD, यानी जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। फिर EF is perpendicular to CD, और ये जो लाइन EF है, EF is perpendicular to CD, यानी लाइन CD पर ये EF जो क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जो जब भी होता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है। तो यानी कि इसका मतलब ये इसने 90 का एंगल बनाया होगा। और वैसे भी यहाँ पर सिंबल भी हमें दिया हुआ फिगर में, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि दैट दिस इज 90 डिग्री एंगल। देन आफ्टर इट्स गिवन दैट एंगल GED इज 126 डिग्री, यानी एंगल GED यानी पूरा एंगल जो है यहाँ से लेकर मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। इससे ये पूरा एंगल है ये है मेरा 126 डिग्री, राइट। जिसमें से ये पार्ट है वो तो 90 का अलग है और यहाँ से तो पूरा जो है वो हमारा 126 डिग्री है, ठीक। तो हमें फाइंड करना है एंगल AGE। तो जो गिवन है वो आप सब लिख ही लेंगे, समझ ही लेंगे, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे यहाँ से निकालना होगा एंगल GEF, ठीक है ना। मैं यहाँ से निकालता हूँ एंगल GEF, क्योंकि ये मुझे पता है इस पूरे 126 में से इतना पार्ट 90 है, तो रिमेनिंग पार्ट में मुझे फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो मैं फाइंड करता हूँ एंगल GEF। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो एंगल जो GEF है वो होगा आपका GEF या एंगल GED माइनस एंगल FED, एंगल FED। फिर से समझ लीजिए इसको, मुझे फाइंड करना है GEF। सबसे पहले GEF यानी ये एंगल मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और वो फाइंड कैसे कर रहा हूँ कि मैं एंगल जो GED मुझे 126 गिवन था, ये पूरा कंप्लीट एंगल, उसमें से ये 90 का एंगल मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो आई हैव रिटन हियर एंगल GED माइनस एंगल FED। तो इस GED मुझे गिवन है 126 डिग्री, ये बुक में गिवन है, माइनस एंगल FED अगर आप देखेंगे ये है हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। उसके बाद अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 126 माइनस 90 आप सब्ट्रैक्ट करें, 6 माइनस 0 होगा हमारा 6 और 12 माइनस 9 ये बचता है हमारा 3, दैट मीन्स 36 डिग्री। यानी कि ये जो पार्ट हो गया, अब मैं इसको पूरे की जरूरत है नहीं मुझे, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। मुझे केवल ये जो एंगल है ये वाला मुझे मिल चुका है 36 डिग्री, और ये हटा देता हूँ मैं, और ये हमारा 90 है। इसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल AGE, यानी एंगल AGE। अभी आप एक चीज समझ लीजिए कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अभी आप एक मिनट लिए ये देख सोचिए, इसको भी भूल जाइए, बस आप ये देखिए ये पूरा एंगल जो है ये और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। मैं एक बार के इसको ट्रेस करके दिखा देता हूँ आपको, एक बार के इसको भूल जाइए, बस ऐसे देखिए इस फिगर को। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर हो जाएंगे तो इसका मीन्स क्या है? दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल GED विल बी, यानी एंगल GED जो हमें 126 डिग्री गिवन है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल AGE के, एंगल AGE के। रीजन ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ALT मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मीन्स ये होगा कि एंगल AGE वो भी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल AGE ये भी हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। तो यानी ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो एंगल AGE हमारा आ गया 126 डिग्री। चलिए फिगर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, वो समझने के लिए मैंने इरेज कर दिया था। तो यहाँ से ये एंगल मैंने 30 डिग्री कैलकुलेट कर ही लिया था, GEF। अब इसमें से जो 3 एंगल्स हमें कैलकुलेट करने थे उसमें से 2 एंगल्स हम कर चुके हैं। एक एंगल उसने हमसे GEF पूछा था, दैट इज द 36 डिग्री, एंड वन एंगल AGE वाज आल्सो आस्क्ड, दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड व्हिच इज 126 डिग्री, एंड लास्ट इज लेफ्ट एंगल FGE, यानी एंगल FGE। अब बस हमें फाइंड करना है ये एंगल। तो वैसे तो हम सबको दिख रहा है कि ये एक लाइन है, ये हमें पहले से गिवन है कि एक लाइन है, और तो ये एंगल 126 से अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमें सबको दिख रहा है कि ये हमारा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि एंगल AGE प्लस, यानी एंगल AGE प्लस एंगल FGE। मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की और इस एंगल की। एंगल FGE they will be equal to, that means their sum will be equal to 180 degree, and reason is linear pair. Now angle AGE is already calculated, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि 126 डिग्री है, and here angle FGE is equals to 180 degree. So let's calculate angle FGE. That means 180 minus this 126. Now let's subtract. 10 minus 6 is 4, and this is 7. 7 minus 2 is 5, and this is 54 degree. You can check 6, 4, 10, 5, 6, 7, 8, and this is 54 degree. That means this angle is 54 degree. Okay, so 3 angles were asked. This angle, this and this. So we have calculated all 3. This is 126, this is 54 degree, and this one is 36 degree. So I hope you all would have understood question number 1, 2, 3. Even if you have any doubt, please you can write in comment box. I'll help you to sort out the problem if you are facing anything. And at last I would like to say thanks for watching it.